Hello everyone, this is Rashmi Sinha and welcome you all on my channel once again. And here I am back with my already a series of videos where I am teaching spreadsheet. And in the last video already I taught you about spreadsheet, that what is a spreadsheet means. It's a screen which has a ability to perform calculation and using formula and functions, and some basic formulas and functions we discussed also in the previous video. But today it's a very typical topic which I have chosen, that is cell referencing and its type. You must watch this video very carefully, and if you have any kind of doubt, please mention down, because I will be very delightful if you have some doubts. That means you are very much curious and definitely wanted to know more about the lesson. So as you see the definition is given. The cell address that we use in the formula is known as cell reference. Okay, and so we can use data from any part of the worksheet. For example, I have written sum, which is a formula, and then b2 and colon and b7 is written. That means we are going to sum from b2 to b7. As I am showing you one of the spreadsheet screen or small screen where this is called a1, where first dot is drawn, because a is a row and 1 is a column. So a1, and then like this b1, c1, d1 and e1. So like this we are calculating and calling their names. So cell reference, if anyone asks you in a simple words, you may simply say it's a address of a cell. And cell, we have two types, the active and the dead cells, where the values are written like this cell. You can see the A1 has 10 value, and then A2 is also 10, and then A3 is 20. So these cells are active cells, and rest all cells which is not in use, or you may call empty, they are called dead cells. So one by one we will talk about cell referencing and their types. So the types means how can we address a cell and how do we use a cell. So first is relative. We have four names. I'll just read out the four names. That is relative, then absolute, then third is mixed, and the last is circular. It is really a complicated topic, so please watch it carefully, that you may get it as I am teaching you in an easy way. I have drawn a simple pictures, you can see, and I'll explain you first. See, the name is relative, means it must have relation. So it is written A1 plus A2 and the answer will come in A3. So what is A1? A1 is this first dot. Suppose this value here, we have some value like 5 rupees, and then A2 is again 5 rupees, and this addition will come in A3. So this, by this we have written, this is a kind of a relation, and this cell referencing, relative cell referencing, can be used anywhere in any kind of data sheets. So the definition of the relative cell reference is when we create a formula reference to a cell range, as I shown you, A1 and A2 both are counted. Suppose A1 to A7 we have to count, and then the value will come in A8. So A1 to A7 is a range. When we have a number of cells, we call it range. So when we create a formula reference to a cell range are based on the position. When we copy or move the formula to other cell, what does this mean? Suppose as I told you that A1 and A2, their counting will come in A3. You can see the B3 cell is also marked as copy. If you want B1, B2 addition, you have to simply click here and then right click and you'll get a copy option. You will only use this in the second box, paste. The answer will come of B1, B2. Then here if you'll click, then C1, C2 addition will come. Like this, it will itself does this. So that's why it's written here, when we copy or move the formula to other cell, the reference of the cell automatically gets changed. Reference of the cell automatically gets changed means एड्रेस, जो भी आपका सेल का एड्रेस है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको A1 A2 ऐड करके दिखाया तो वो A3 में आ गया. अब अगर आप B3 पे कॉपी पेस्ट करोगे तो B1 B2 ऐड होके आएगी एंड आपका सेल रेफरेंस शो करेगा B1 प्लस B2 इज B3.
then C1 plus C2, C3. This is the way it copies and it functions. So this is the function of first, which is relative. Come to the second, which is little different, absolute. As you can see in an example, I have made a dollar symbol before every value. जैसे मैंने a के पहले भी डॉलर सिंबल बना दी, फिर a के बाद भी बना दी, 1 के पहले भी बना दी. दिस डॉलर सिंबल जब भी आप लगाओगे, उस वैल्यू, उस रो की या उस कॉलम की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. दैट विल नॉट चेंज. तो एज आई हैव फिक्स इन एवरीवेयर द डॉलर साइन, ऑल द वैल्यूज आर फिक्स्ड. तो अगर मैं अभी A1 A2 ऐड करूं तो आंसर A3 आ रहा है मेरे पास, बट B3 में आप वही वैल्यू अब नहीं आएगी, C3 में नहीं आएगी. सपोज यू हैव अ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट कॉलम, लाइक कंपनी डोंट गिव एवरीवेयर द सेम वैल्यूज. तो वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, डॉलर लगाते हैं, और वहाँ जहाँ उनको चीज़ें सेम रखनी होती है वहाँ डॉलर नहीं लगाते, जहाँ उनको डिफरेंट रखनी होती है वहाँ डॉलर लगाते हैं. सपोज अब मैं इसकी डेफिनेशन पहले रीड करती हूँ. If you don't want to change the address of the cell while copying the formula to the another cell, अगर आप कॉपी यूज़ कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो, तो इन दैट केस आप डॉलर सिंबल यूज़ करो. वी विल यूज़ डॉलर साइन. दिस फॉलोज व्हेन वी डोंट वांट टू चेंज फाइनल सेल. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, अब सपोज कंपनी DA देती है, 10% दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सिर्फ उसको DA के कॉलम को फिक्स करना है. प्रॉफिट मिल रहा है सपोज आपको 30%, तो सिर्फ प्रॉफिट वाले कॉलम पे ही वो डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे, वो सेम रहेगा, बाकी सारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है. सो व्हेन वी वांट चेंज ऑफ टोटलिंग, तब हम ये यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट. नाउ द नेक्स्ट इज मिक्स्ड. मिक्स्ड इसका नाम है, दैट मीन्स इट इज यूजिंग बोथ ऑफ देम. विच बोथ ऑफ देम? द फर्स्ट एंड सेकेंड. लाइक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट को, ये दोनों को ही मिक्स्ड रेफरेंसिंग विल यूज. अभी मैंने इसके लिए आपको एक अटेंडेंस की कॉलम दिखाई है, एक स्प्रेडशीट दिखाई है, अटेंडेंस का वर्कशीट है. एंड एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं मैंने किसी किसी के आगे डॉलर सिंबल यूज़ किया है और किसी किसी के आगे नहीं. दैट मीन्स जो चीज़ें मुझे फिक्स रखनी है वहाँ डॉलर है. फॉर एग्जाम्पल डॉलर A विल बी फिक्स्ड बट 1 विल नॉट फिक्स्ड. इट मे बी डॉलर A3 भी हो सकता है, वो डॉलर A6 भी हो सकता है वो, प्लस $2, यानी इस बार A फिक्स नहीं है, 2 फिक्स्ड है. मीन्स अगर आप कभी रो फिक्स करना चाहते हो, कभी कॉलम, तो वैसे सिचुएशन में हम ये यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर को देखें तो आपका मंथ सिर्फ चेंज होता है, बट उनमें लिखे नाम यानी बच्चों की नेम लिस्ट नहीं चेंज होती है. तो वैसे सिचुएशन में आपको एक बार रो को चेंज नहीं करना है, कॉलम को सिर्फ चेंज करना है. या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको उल्टा करना पड़े, तो इन दैट केस वी यूज़, जैसे कैलेंडर्स में होता है, कैलेंडर्स में मंथ के साथ साथ कई बार संडे मंडे की वो सीरियल भी चेंज हो जाती है. सो इन दैट केस वी यूज मिक्स्ड वन. चलिए इसकी डेफिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस, ईदर रो और कॉलम हैज़ टू रिमेन सेम. लाइक मंथली एक्सपेंस बना रहे हैं आप या अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं आप, तो इन दैट केस आपको कोई एक ही चीज़ चेंज करनी है, सारी नहीं, या कोई 2 चीज़ चेंज करनी है, सारी नहीं. इन दैट केस हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड मिक्स्ड. Dear student, I know you are very intelligent and you understand what I am teaching, but maybe मेरी टीचिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, और अगर ऐसा हो तो बिल्कुल शर्माए नहीं, बिल्कुल डोंट फील शाय, डोंट फील बैड. प्लीज़ मेक श्योर कि मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ और आप मुझे प्लीज़ 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 पूछते जाएँ. सो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एज वेल एज, एंड कॉमेंट डाउन इफ़ यू हैव अ डाउट ऑन एनी वन. ओके, तो नाउ वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द सेल रेफरेंसिंग टाइप, और इसका नाम है सर्क्यूलर. दैट्स वेरी अमेजिंग वन. इसकी एग्जाम्पल के लिए बहुत ही अटपटा सा एग्जाम्पल है. द एग्जाम्पल इज A1 प्लस A2, फिर A* का सिंबल है, A*3, और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसका आंसर A2 में आना चाहिए. व्हाट डज दिस मीन? और आप नीचे देख सकते हैं मैंने बिल बनाया. बिल जैसे आप शॉपिंग मॉल्स जाते हो, सपोज करो अगर वहाँ किसी सामान, मान लीजिए आपने एक ही प्रोडक्ट को 3 बार खरीद लिया, 3 बिस्किट पैकेट्स खरीद लिए, तो वो क्या लिखते हैं? A2 × 3. ठीक है, तो वो 3 क्वांटिटी ली है आपने, तो वो वैल्यू आनी कहाँ चाहिए? उसी में आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपकी सिर्फ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई है, कॉस्ट सेम रहती है. इन दैट केस हम ये सर्क्यूलर यूज करते हैं. एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस इज, व्हेन अ फॉर्मूला इन अ सेल
रेफर्स टू ओन सेल। सपोज आपकी जो टोटल, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी नीचे बना दिया, जैसे यूनिट प्राइस मेरी 2 रुपये है, ठीक है, और क्वांटिटी मैंने ली है 15, 2 रुपये की मैंने कोई 15 चीज़ें ली है, 15 पेन ले लिए सपोज करिए आप 2 रुपये वाली, तो उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं B4*C4 में। तो C4 में है क्वांटिटी और B4 में है यूनिट प्राइस, तो वो मल्टीप्लाई होकर आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यही एग्जाम्पल यू मे कंटिन्यू, दैट सपोज कीजिए A1 आपका क्वांटिटी है एंड A2 आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी आपने यूनिट वैल्यू सपोज कीजिए 5 रुपीज़ की A1 में आपने लिख दिया, A1 में 5 रुपीज़ प्लस A2*3 अभी आपने 5 रुपीज़ वाली 10 पेन्स परचेज किए, तो 10 × 3 होगी और आंसर आपका A2 में आएगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गेट दिस चैप्टर सेकेंड पार्ट, जो मैंने अभी आपको सेकेंड पार्ट सिखाया है। इसके बाद वन मोर पार्ट आई एम गोइंग टू शूट फॉर द सेम चैप्टर, बाय दैट यू विल बी डेफिनेटली feel great in this lesson, and this lesson will take you to the next level. So hope you will watch this video carefully and mention down any kind of doubt you have. Thank you for watching. Stay safe home. Take care. Bye bye.